میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بزرگ قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں لشکروں کے خداوند خدا اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں، جس نے مجھے میری ماں کے رحم سے چنا اور انجیل کے لیے مخصوص کیا، جس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا اور اپنی ابدی بادشاہ میں مجھے شامل کیا۔ آج میں اس کی زندگی بخش، نجات بخش کلام کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں CRN چینل کا، جنہوں نے پھر مجھے دعوت دی اور میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ خدا کے خادم ایونجلسٹ پرویز عالم کے شکر گزار ہوں، جس کو خدا نے رویا دی اور یہ چینل انہوں نے بنایا تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے انجیل کی منادی ہو سکے۔ میرے عزیزو، ہم نے لاسٹ سرمن کے اندر، ٹیچنگ سیشن کے اندر ایمان کے تعلق سے باتیں سیکھی۔ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایک حقیقی ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی اقسام کیا ہیں، اور ایمان کی خصوصیات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں جو دیکھا، ایمان کا اقرار کیا ہے۔ ہم نے لاسٹ میسج کے اندر ایمان کے اقرار کے اوپر سیکھا۔ آج میں اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلوں گا، ایمان کے اقرار ہی کو، اور اس کو کنٹینیو کروں گا۔ میرا ایمان ہے آج کے اس پیغام سے بھی آپ برکت پائیں گے اور ایمان کے 10 درجے زیادہ آپ آگے جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ آج میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھے ہیں، تموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے ہمارے خدا کی طرف سے اس کی شفقت اور رحمت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا خادم پولس رسول اپنے فرزند کو لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے فرزند، ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ وہ ایمان کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور اس ہمیشہ کی زندگی پر جس کے لیے تو بلایا گیا تھا قبضہ کر لے، اور جس کے لیے تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ 15ویں آیت کے اندر ریمائنڈنگ کراتے ہوئے، یاد دہانی کے طور پر وہ خدا یسوع مسیح کی مثال کو کوٹ کر رہا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پینتوس پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں، آمین۔ یاد دہانی کے طور پر پولس رسول اپنے روحانی فرزند کو خدا یسوع مسیح کی اچھی مثال پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے پینتوس پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا اور تو نے بھی بہت سارے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، بس اب تجھ پر لازم ہے کہ تو ایمان کی اچھی کشتی لڑے اور اس ہمیشہ کی زندگی پر جس کے لیے تو بلایا گیا تھا قبضہ کر لے۔ میرے عزیزو، ہم جو کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں وہ خدا کے حضور میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے الفاظ، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، ہر ایک لفظ، ہر ایک بات جو ہم اپنے منہ سے ڈیلیور کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ خدا کے حضور میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ بائبل مقدس اقرار کے تعلق سے، باتوں کے تعلق سے ہمیں بہت تعلیم دیتی ہے۔
और बाइबल मुकद्दस की यह तालीम बिल्कुल क्लियर है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, फरमाया कि तुम्हारा जवाब हां या ना में होना चाहिए। यानी जो कुछ तुम बोलो वो सच बोलो। अगर हां है तो फिर सच बोलो हां है, अगर ना है तो फिर सच बोलो कि ना है। इसके दरमियानी कोई और जो बात नहीं कही गई। मेरे अजीजों, नोट कीजिए इस बात को, हम जो कुछ बोलते हैं हमारे अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है। और उसकी खास वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाया, और खुदा ने अपनी जाते इलाही की खुसूसियात को हमारे अंदर इंपार्ट किया है। खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है, और खुदा ने ये बरकत इंसान को भी दी है, और वो भी बोलने की जो है वो खासियत रखता है। खुदा फरमाता है और हो जाता है। और खुदा हमें यह तालीम देते हैं कि बेटा, जो कुछ तूने बोलना है सोच समझ कर बोलना है। कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हमारे अल्फाजों में कुदरत पाई जाती है। हम जो कुछ बोलते हैं हमारे अल्फाज वो कायम रहते हैं, और वो खुदा के हुजूर में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आए हम एक हवाला देखते हैं बोलने के ताल्लुक से, मत्ती की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत की हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। यह खुदा यीशु मसीह की तालीम है जो उसके लबे मुबारक से निकली है, और ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा ने हमें यह तालीम दी है, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने फरमाया कि तू अपने मुंह की बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा, और तू अपने मुंह की बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। रास्तबाज कैसे ठहराए जाते हैं? जब हम अपने मुंह से निकम्मी बातें नहीं कहेंगे, जब हम अपने मुंह से ईमान की बातें कहेंगे, जब हम अपने मुंह से खुदा के कलाम की बातों को निकालेंगे, तो उस सबब से हम पाक ठहरते हैं और हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदा का कलाम मेरे अजीजों हमें पाक करता है, खुदा के मुंह की बातें हमें पाक करती हैं। और जब हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को अपने मुंह से डिलीवर करते हैं, तो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमें पाक करता, हमें रास्तबाज ठहराता है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लोग अपने मुंह की अच्छी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराए जाएंगे, और अपनी निकम्मी बातों के सबब से कसूरवार ठहराए जाएंगे, और अदालत के दिन उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमने बहुत सोच समझकर अपने मुंह से अल्फाजों को निकालना है। याकूब के खत के अंदर उसके 3 बाब और उसकी 2 आयत की जब हम स्टडी करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि हम अक्सर बातों ही बातों में खता करते हैं। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, इंसान के अंदर यह लिखा है। जो ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा खताएं करता है। जो ज्यादा बोलते हैं, बेमानी बोलता रहता है, वो ज्यादा खताएं करता है। और बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि अक्सर हम बातों ही बातों में खता करते हैं, लेकिन कामिल शख्स वो है जो बातों में खता नहीं करता। प्रेज गॉड। कामिल शख्स की पहचान यह है
کہ وہ باتوں میں خطا نہیں کرتا, وہ بولنے میں جلد بازی نہیں کرتا. اور امثال کی کتاب میں لکھے ہیں کہ تو بولنے میں جلد بازی نہ کر, کیونکہ جو بولنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے. اس لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے, اور جو کچھ ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں یاد رکھیں وہی ہمارا اقرار ہے. ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو بول رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی جاب کے اندر, اپنے بزنس کے اندر, یا کسی بھی جگہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ہمارا اقرار ہے, اور وہی ہمارے منہ کی باتیں جو وہ پروف کرتی ہیں کہ ہم راست باز ہیں یا ہم قصوروار ہیں یا ہم ناراض ہیں. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ تعلیم بالکل کلیئر وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ ہم نے ایمان کا اچھا اقرار کرنا ہے جس طرح خدا یسوع مسیح نے اچھا اقرار کیا. میری عزیزو, بہت ساری مائیں آج اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو گالیاں دیتی رہتی ہیں. یاد رکھیے گا, گالیاں لعنت ہیں. جب کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو گالی دیتی ہے تو گویا وہ اپنے بچے کی زندگی پر لعنت کر رہی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں بالکل کلیئر کرتی ہے, بالکل ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے, کیونکہ گالیوں کے سبب سے وہ خود بھی قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں, وہ ناراض بنتے ہیں. ہر وہ الفاظ, ہر وہ کلام جس کا تعلق خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہے, وہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک رکھتا ہے, وہ ہمیں پاک کرتا ہے. لیکن وہ باتیں, وہ کلام جن کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں ہے, وہ باتیں, وہ الفاظ ہمیں ناپاک کرتی ہیں اور ہمیں خدا کے حضور میں بھی گنہگار ٹھہراتی ہیں. بہت ساری مائیں اپنے بچوں کے حق میں, بہت سارے باپ اپنے بچوں کے حق میں یہ اکثر کہتے رہتے ہیں غصے میں آ کر, جذبات میں آ کر, کہ یہ میرا بیٹا نکما ہے, یہ نالائق ہے, یہ نافرمان ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا, یہ نہیں کامیاب ہو سکتا. یاد رکھیے وہ اقرار جو ہم اپنے بچے کے حق میں کر رہے ہیں وہ ہمارے الفاظ اس کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا جو کچھ ہم اقرار کرتے رہے اس کے حق میں نیگیٹو باتیں ڈیلیور کرتے رہے, وہ نیگیٹیوٹی رزلٹ پروڈیوس کرے گی. اور ایک وقت پر آ کر وہی بیٹا جو لائق تھا, جو بہت اچھا ہو سکتا تھا, آپ کے منفی الفاظوں کے سبب سے جو ہے وہ نکما بن گیا, وہ نالائق بن گیا, وہ نافرمان بن گیا, اور وہ دنیا کا برا ترین شخص بن گیا. جو کچھ آپ اقرار کریں گے وہی کچھ آپ کے سامنے آئے گا. میرے عزیزو, نیگیٹو ورڈز نیگیٹو چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں, نیگیٹو ریزلٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں, اور پازیٹو ورڈز پازیٹو چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. آپ منفی بیج بوئیں گے, منفی فصل اگے گی. آپ اچھا بیج بوئیں گے, اچھی فصل اگے گی. اور اچھی فصل ہر شخص خوشی سے کاٹتا ہے, لیکن بری فصل کو کوئی بھی خوشی سے نہیں کاٹتا. اور بالکل اسی طرح زندگی میں ہے, جو کچھ آج ہم اپنے منہ سے منفی الفاظوں کو, منفی بیجوں کو بو رہے ہیں, وہی کچھ ہمیں کاٹنا پڑے گا مستقبل کے اندر. اس لیے بائبل مقدس میں خدا نے کہا جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. ہمیں اپنی باتوں کا اور اپنے کاموں کا عدالت کے دن حساب دینا پڑے گا. ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان کا اچھا اقرار کرتے رہنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کے حق میں, اپنی فیملیز کے حق میں, اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے حق میں, اپنی خدمت کے حق میں, اپنی جاب کے حق میں, اپنے بزنس کے حق میں. ہم ہمیشہ ایمان کا اچھا اقرار کریں. اور جو شخص ایماندار ہے, یاد رکھیے گا, وہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ اچھے الفاظ اپنے منہ سے نکالے گا. اور جو شخص ایماندار نہیں ہے اس کے منہ سے آپ اکثر منفی باتوں کو سنیں گے, آپ نکمی باتوں کو سنیں گے,
मायूसी की बातों को सुनेंगे, नाकामी की बातों को सुनेंगे, शिकस्त जो है वो शिकस्त खुर्दा बातों को आप सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और हवाला हम देखते हैं। इमसाल 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, मौत और जिंदगी इंसान की जुबान के काबू में है। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इमसाल 18 बाब, और इमसाल किसने लिखी? इमसाल उस खुदा के ममसू ने, उस खुदा के खादम ने लिखी जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा हिकमत बख्शी, जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा इंसानों में से हिकमत से मामूर किया, और उसकी हिकमत के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे। और खुदा का खादम सुलेमान बादशाह ये भेद की बात लिखता है कि मौत और जिंदगी इंसान की जुबान के काबू में है। मेरे अजीजों, इंसान अपनी जुबान के सबब से, अच्छी जुबान के सबब से जिंदगी पाता है और अपनी बुरी जुबान के सबब से मौत को पाता है। और इसकी खूबसूरत पिक्चर आपको पेश करता हूं। खूबसूरत तकमील जो हमें नजर आती है वो सलीब के ऊपर है। जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया हमारे गुनाहों के सबब से, हमारी नजात के लिए, तो उसकी दाईं तरफ भी एक डाकू था और खुदा की बाईं तरफ भी एक डाकू था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम अनाजीलों के अंदर देखते हैं जो बाईं तरफ वाला डाकू था उसने खुदा यीशु मसीह पर जो है वो नेगेटिव वर्ड्स डिलीवर किए, शक किए हैं, लानतान कर कि अगर तू यहूदियों का बादशाह, अगर तू खुदावंद है, अगर यानी शक। और दुश्मन ने भी यही कहा बियाबान के अंदर, अगर तो खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। और ये शख्स जो बाईं तरफ था इसने भी यही अल्फाज निकाले हैं कि अगर तू खुदावंद है तो फिर अपने तई अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। नेगेटिव वर्ड्स वो बोल रहे हैं। लेकिन दाईं तरफ वाले डाकू ने जब ये बातें सुनी कि ये क्या कह रहा है तो उसने उसका मुंह बंद कराया। उसने दाईं तरफ वाले डाकू ने कहा कि तू ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हम तो अपने कामों के सबब से यहां पर फंसे हैं। हमने गलत काम किए हैं, हमने डाके मारे हैं, हमने कत्ल किए हैं, हमने चोरियां की हैं, हमने शरीयत के खिलाफ काम किए हैं। हम तो अपने कामों के सबब से यहां फंसे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये कौन कह रहा है? ये वो शख्स कह रहा है जो खुदा यीशु मसीह की दाईं तरफ है। और बाईं तरफ वाला डाकू भी जानता था कि खुदा यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। उसने मनफी अल्फाज अपने मुंह से निकाले लेफ्ट हैंडेड शख्स ने, और जो राइट हैंड साइड पर था उसने मुस्बत अल्फाजों को डिलीवर किया है। उसे डांटा, झिड़का है कि तू ऐसा क्यों कहता है? हम अपने कामों के सबब से यहां फंसे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। और उसने खुदा यीशु मसीह से मुखातब होकर, जो राइट हैंड साइड का डाकू था, उसने कहा, खुदाउन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। ये एक जुमला उसके लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस हुआ। उसने अपने मुंह से ईमान का अच्छा इकरार किया। इससे पेशतर वो मर जाता और आलमे रुआ में जाता, अजाब की जगह में फंस जाता। एक अच्छे अल्फाजों ने, एक अच्छे ईमान के इकरार के सबब से उसे हमेशा की जिंदगी की जो है वो मिल गई और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स की बात को सुनकर, उसके इस अच्छे इकरार को सुनकर उससे मुखातब होकर कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और बाइबल मुकद्दस में इमसाल 18 बाब 21 आयत यही बयान करती है, मौत और जिंदगी इंसान की जुबान के काबू में है। जो राइट हैंड साइड वाला डाकू था उसने ईमान का अच्छा इकरार किया और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। मेरे अजीजों, फिर रिपीट करता हूं, नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
अपनी सोचों को आज हमें बदलने की जरूरत है, अपने अंदेशों को बदलने की जरूरत है, अपने ख्यालों को बदलने की जरूरत है, अपने मंसूबों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, अपनी जात से नेगेटिविटी को हमें निकालने की जरूरत है, हमें अपने आप को खुदा के कलाम से भरने की जरूरत है और हमें हर वक्त हर जगह ईमान का अच्छा इकरार करने की जरूरत है। अगर हालात अच्छे नहीं हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास अच्छा बिजनेस नहीं है, या आपके बिजनेस के हालात बेहतर नहीं जा रहे, तो आप ईमान का अच्छा इकरार करते रहें कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं, मैं एक कामयाब खादम हूं, मैं एक कामयाब बाप हूं, मैं एक कामयाब लीडर हूं। आपके ये मुस्बत अल्फाज आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होंगे और जो कुछ आप इकरार करते रहेंगे आपके लिए वही कुछ होता चला जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग, ईमानदार क्रिश्चियंस लोग, आज अपनी जिंदगी में हालात जब बुरे आते हैं, जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, खिदमत के अंदर कुछ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो बेदिल हो जाते हैं और बेदिली के सबब से मनफी बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरों के हक में, अपने हालात के हक में, अपनी इज्जत के हक में। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम एक और मिसाल देखते हैं, गिनती की किताब और उसके 13वें बाब के अंदर खुदा ने अपने खादम, अपने बंदा मर्द ईमान मुकद्दस मूसा से यह कहा कि तू 12 आदमियों को चुनाव कर और उनको मुल्क कनान में जासूसी के लिए भेज। खुदा के खादम मुकद्दस मूसा ने 12 कबीलों में से 12 लोगों का चुनाव किया और 12 लोगों का एक ग्रुप बनाकर मुल्क कनान के अंदर भेजा। 40 दिन और रात के बाद जब वही ग्रुप वापस आया तो पता चला कि भेजा एक ग्रुप गया था, लेकिन अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। 10 लोगों का ग्रुप एक तरफ है और 2 लोगों का ग्रुप एक तरफ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, गिनती 13वें बाब के अंदर उसकी आखिरी 3-4 आयत को जब हम स्टडी करते हैं तो लिखा है कि उन्होंने आकर बनी इस्राएल कौम को बुरी खबर दी। उन्होंने ये खबर दी कि वहां पर जो कौमें रहती हैं वो बहुत जोरावर हैं, बहुत ताकतवर हैं, जबारों की मानद है, सूरमा हैं, वो पदाशी जंगजू हैं, वो कौमें, उनके हथियार बहुत मजबूत हैं और वो मजबूत घरों के अंदर रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं। सो लिहाजा हम उनके साथ जंग नहीं कर सकते। हम तो उनके सामने ऐसे लगते थे जैसे टिड्डे हैं और गोया हम उनकी खुराक हों, और हम हैं भी। इन मनफी बातों को सुनकर सब लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज हुई और सब लोगों ने अपने ज़हनों में हथियार फेंक दिए, मायूसी छा गई। और गिनती 14वें बाब के अंदर उसकी पहली 2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सारी रात पूरी जमात ज़ारो कतार रोती रही, मातम कोहराम मच गया और रोना चलाना शुरू कर दिया पूरी जमात ने, और कहना यह शुरू कर दिया कि खुदा मूसा में इस जगह पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम इन कौमों के हाथों से कत्ल किए जाएं और हमारी बीवियां और हमारी बेटियां लूट का माल बने। सो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वापस मिस्र की गुलामी में जाना पसंद करेंगे, हम वापस मिस्र में जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्या हम इन कौमों के हाथों से कत्ल हों और हमारी बेटियां हमारी बीवियां लूट का माल बने। जब 2 शख्सों ने, यशुआ ने और कालब ने, इन सारी बातों को सुन लिया, हालात को देख लिया, तो जज्बात में आकर अपने कपड़े फाड़ लिए और उन सब से, पूरी जमात से मुखातब होकर यह कहा कि फकत तुम खुदाउन से बगावत ना करो,
हमारा खुदा जो हमें मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, बहरा कुलज़म में से निकाल कर लाया, बियाबानों में हमें मन खिलाता रहा, खुश्क चट्टानों में हमारे लिए पानी मुहैया करता रहा। हम जरूर जो है उस मुल्क में जाएंगे, हमारा खुदा हमारे साथ है, फकत तुम खुदा से बगावत ना करो। आए हम उनके साथ लड़ें और वो हमारे हाथों से कत्ल किए जाएंगे, हम उनको कत्ल करेंगे, उनको वहां से भगाएंगे और हम उस मुल्क में जरूर काबिज होंगे। मेरे अजीजों जरा गौर कीजिएगा, 10 लोगों ने बुरी खबर दी है और बुरी खबर के सबब से, नेगेटिव वर्ड्स के सबब से नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो गए। लेकिन ईमान के ये 2 सुरमा एक तरफ खड़े हैं, इन्होंने भी वही कुछ देखा जो उन 10 लोगों ने देखा है मुल्क कनान के अंदर। लेकिन ये ईमान के सूरमा हैं, ईमान के सबब से इनकी सोचें पॉजिटिव हैं, इनके ख्याल पॉजिटिव हैं, इनके अंदेशे पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा हम जरूर उनको कत्ल करेंगे, वो हमारी खुराक है, हम उनको कत्ल करेंगे और उस मुल्क के अंदर जो है काबिज होंगे, जिसका वादा खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे बाप दादा के साथ किया था। खुदा ने जब इन सारी बातों को सुना और सुनने के बाद खुदा ने अपनी जात की कसम खाकर यह कहा कि ये लोग जिन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, मुझ पर तवक्कुल नहीं रखा, ये उस वादा की हुई सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि ये इसी बियाबान के अंदर मरेंगे। लेकिन मेरा बंदा कालिब और यशवा और नई नस्ल उस मुल्क कनान के अंदर दाखिल होगी, जिन्होंने मुझ पर ईमान रखा, मेरी जात के ऊपर ईमान रखते हुए एक अच्छा इकरार किया मेरी हजूरी में। मेरे अजीजों, जहां कहीं भी हैं, जो कुछ हम बोलते हैं वो खुदा के हजूर में हमारा इकरार है। आए अपने जहनों से नेगेटिविटी को निकालें, अपने ख्यालों से मनफी बातों को, ख्यालों को निकालें और अपने सोचों को, अपने ख्यालों को मुस्बत बनाएं, अपने अंदेशों को मुस्बत बनाएं और ईमान का अच्छा इकरार करें। मैंने एग्जाम्पल लास्ट कोट की थी, जिस तरह दाऊद ने ईमान का अच्छा इकरार अपने दुश्मन के सामने किया और सारी जमात के सामने ईमान का अच्छा इकरार किया कि ये जंग तो खुदावंद मेरे खुदा की है, तू भाला और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ के नीचे करेगा और मैं तेरे सर को तेरे बदन से जुदा करूंगा और मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को और जंगली दरिंदों को खाने के लिए दूंगा, ताकि ये सारी जमात जान ले कि इस्राएल का खुदा ही कदूस है और कादर मुतलक है, जो जंग में जोरावर, कवि और कादर खुदा है। मेरे अजीजों, याद रखिए, हमारे खुदा ने आज तक कोई जंग नहीं हारी। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो अज़ली और अबदी फातेह खुदा है। अज़ली और अबदी फातेह खुदा है और खुदा चाहता है हम ईमान का अच्छा इकरार करें। जिस तरह पौलुस रसूल अपने फर्जंद को यह लिखता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसके लिए तूने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आज अपनी सोचों को, ख्यालों को, अंदेशों को तब्दील कीजिए और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में दावत दें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर ले लें और खुदा के कलाम से भर जाएं। जिस तरह खुदा का खादम दाऊद बादशाह कहता है कि खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, आए हर जगह हर वक्त हम ईमान का अच्छा इकरार करते रहें और हम खुदा के हजूर में रास्तबाज ठहरा जाए, खुदा के हजूर में हम बरकत पाते रहें और हमारी बातें खुदा को हमेशा पसंद आए, क्योंकि मनफी बातें बोलने वाले, निकम्मी बातें बोलने वाले अदालत के दिन हिसाब देंगे और वो खुदा के हजूर में मुजरम हैं। आए खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान का अच्छा इकरार करें, ईमान को
اور خدا کے کلام کو جس کے اندر قدرت ہے وہ حالات کو بدلتا ہے اس کو لے لیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے، آپ کے گھر کے، آپ کی جاب کے، آپ کے بزنس کے حالات یکسر طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ میرا ایمان ہے آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے کثرت کی برکت پائی ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے کلام مقدس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔